فیصل آباد میں انتخابات کے بعد نتائج بھی سامنے آ گئے۔ مسلم لیگ نون کی پنجاب اور مرکز میں حکومت سازی کی کوششیں جاری ہیں۔ آزاد اراکین کو مسلم لیگ نون میں شامل کرنے کی کوشش شروع کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے اس خبر کے حوالے سے فیصل آباد میں انتخابات کے نتائج بھی سامنے آ گئے۔ مسلم لیگ نون کی پنجاب اور مرکز میں حکومت سازی کی کوششیں جاری ہیں۔ آزاد اراکین کو مسلم لیگ نون میں شامل کرنے کی کوششیں شروع کر دی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس بارے میں عبدالرحمان سے۔ عبدالرحمان آگاہ کیجیے گا۔ تو بات کریں فیصل آباد ڈویژن میں یہاں پر پورے ملک کی طرح یہاں پر بھی جتنے بھی نتائج تھے وہ سامنے آ چکے ہیں۔ حتمی نتائج کا اعلان کیا جا چکا ہے اور فیصل آباد میں بات کریں تو مسلم لیگ نون جو ہے سب سے کمزور پوزیشن میں رہی ہے، جہاں پر صرف ایک ایم این اے اور 4 ایم پی اے پورے ضلع میں بنے ہیں، جبکہ وہاں پر بھی جو ہے وہ دوبارہ گنتی کی درخواستیں بھی دائر ہو رہی ہیں۔ ریٹرننگ افسران کے خلاف سمندری میں احتجاج بھی ہو رہا ہے، گزشتہ رات بھی ہوا، آج دن میں بھی ہوا، جہاں پر احتجاجی مظاہرین کا یہ موقف ہے کہ نتائج بدلے گئے ہیں۔ تو اس صورتحال میں دوسری جانب مسلم لیگ نون کی جو میاں شہباز شریف، رانا ثناء اللہ خان اور دیگر جتنے بھی سینئر قیادت ہے، انہیں یہ ٹاسک سونپا گیا ہے کہ یہاں پر پنجاب اور مرکز میں حکومت بنائی جائے اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ آزاد اراکین کا ساتھ جو ہے وہ ملایا جائے۔ فیصل آباد کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر فیصل آباد میں 17 جو ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں آزاد، اور اس کے علاوہ یہاں پر ایم این ایز کے حوالے سے بات کریں تو 9 ایم این ایز آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد اراکین پر سب کی نظریں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ کسی اور سیاسی پارٹی میں شامل ہو کر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ایسٹ بنے، اس سے پہلے انہیں جو ہے وہ اپنی جانب کھینچ لیا جائے، اور اس سلسلے میں افواہیں بھی اڑتی رہیں۔ آج دن بھر جو ہے وہ ان افواہوں کے بارے میں یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کے ساتھ کامیاب ہونے والے ندیم صادق ڈوگر نے بھی تردید کی، ایم این اے رانا عاطف نے بھی تردید کی، اسی طرح دیگر جس پر بھی کوئی الزام لگتا رہا ہے یا کہیں پر سوشل میڈیا پر کوئی خبر چلتی رہی ہے تو ان جیتنے والے امیدواروں کی جانب سے جو ہے وہ تردید سامنے آتی رہی ہے کہ یہاں پر وہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے کامیاب ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ہی رہیں گے۔ اس سلسلے میں جیتنے والے جو ہے وہ اپنے ویڈیو بیان بھی جاری کرتے رہے۔ ڈاکٹر نثار احمد جٹ کا بھی ویڈیو بیان جو وہ سرکولیٹ کرتا رہا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے کامیاب ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کا حصہ ہی رہیں گے۔ تاہم جو افواہ سازی ہے اس کا بازار گرم ہو چکا ہے۔ مسلم لیگ نون کے جو گروپس بنے ہوئے ہیں، ان کے سوشل میڈیا پیجز ہیں، ان پر یہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ فلاں کے ساتھ بھی رابطہ ہو چکا ہے اور فلاں کے ساتھ بھی شرائط طے ہو رہی ہیں۔ تو اب یہاں پر جب تک یہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا حصہ نہیں بنتے تو اس سلسلے میں الیکشن کمیشن جو قوانین ہیں ان کے مطابق جو فارم 49 جاری کیا جا چکا ہے، اب الیکشن کمیشن کی جانب سے فائنل نوٹیفکیشن جاری کیے جائیں گے، گزٹ نوٹیفکیشن ہوں گے کون کہاں سے کامیاب ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد 3 روز ہوں گے ان امیدواروں کے پاس اپنی کوئی بھی سیاسی پارٹی کا چناؤ کرنے کے لیے۔ اگر 3 روز میں کوئی بھی امیدوار اپنی سیاسی پارٹی کا چناؤ نہیں کرتا تو پھر اس کے بعد اس کو آزاد کنسیڈر کیا جائے گا، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ شامل ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ بھی پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کے حوالے سے بات چلتی رہی ہے، تاہم ابھی تک کوئی بھی جو ہے وہ کنفرم اطلاعات سامنے نہیں آئی کہ وہ کس پارٹی میں شامل ہو کر اپنی جو ریزرو سیٹس ہے وہ حاصل کریں گے، کیونکہ 20% تک جو ہے وہ ریزرو سیٹس انہیں اسی صورت میں مل سکتی ہیں جب ان پر سیاسی پارٹی کا ٹیگ لگے گا، اور وہ بھی سیاسی پارٹی جو بیلٹ پیپر پر جس کا نشان ہوگا۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ امیدواران ہیں ان کے لیے بڑا کٹھن امتحان ہے ان دنوں میں ثابت قدم بھی رہنا، کیونکہ یہاں پر جن لوگوں نے جن ووٹرز نے انہیں کامیاب کرایا ہے تو ان کی جانب سے جو ہے وہ سختی سے یہ تردیدیں بھی ہو رہی ہیں کہ وہ کوئی بھی ایسا جو ہے وہ قدم اٹھانے سے پہلے سوچیں، کیونکہ پھر ان پر بھی جو تنقید کے دروازے کھل جائیں گے۔ تاہم ابھی تک پی ایم ایل این کے حوالے سے یہ بڑی اہم جو ہے وہ اطلاعات ہے کہ یہاں پر فیصل آباد میں کیونکہ ان کا صرف ایک ایم این اے کامیاب ہوا ہے، 4 ایم پی ایز کامیاب ہوئے ہیں، تو پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے بھی جو ہے وہ بندوں کی ضرورت ہے، ایم پی ایز کی مرکز میں حکومت بنانے کے لیے بھی ایم این ایز کی ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے میں سیاسی پارٹیز متحرک ہو چکی ہیں۔ میاں شہباز شریف جو کہ صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، رانا ثناء اللہ خان صوبائی صدر مسلم لیگ نون اس سلسلے میں متحرک کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی یہی کوششیں ہیں کہ وہ اگر کوئی آزاد بندہ ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو وہ بھی کیا جا سکے۔ تو یہ تمام سیاسی پارٹیوں کی دوڑ ہے، جبکہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے ان کی یہ کوشش ہے کہ ان لوگوں کو انٹیکٹ رکھا جائے اپنے ساتھ جو ان کے پارٹی کے ساتھ کامیاب ہوئے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں یہ جنگ تب تک شدت اختیار کرتی جائے گی جب تک سیاسی پارٹیوں کے پاس بندے پورے نہیں ہو جاتے، کیونکہ پنجاب میں مسلم لیگ نون
फेवरेट समझी जा रही है हुकूमत साजी के लिए, ताहम उनके पास जो नंबर गेम है वो खासी कम है, और जब तक कोलिशन गवर्नमेंट नहीं बनती तब तक वो पंजाब में जो अपना सिक्का नहीं जमा पाएंगे। इसी तरह से मरकज में भी नून लीग के पास सीटें कम है, और जब तक उनकी इत्तेहादी हुकूमत नहीं बनती तब तक जो है वो गोल्डन नंबर वो हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इन सूरत हाल में अफवाहों का बाजार गर्म हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता MPs MNAs वो अपनी अपनी तरदीद कर रहे हैं, जिसके बारे में भी सोशल मीडिया पर ये इल्ज़ाम चलता है कि वो PMLN का हिस्सा बन चुका है या उसके साथ मामला तय हो चुके हैं। तो उसकी जानिब से फ़ौरन वीडियो पैगाम सामने आ जाता है कि वो PTI का हिस्सा है, PTI का हिस्सा रहेगा। ताहम अभी जो है वो फार्म 49 कल और आज कुछ जारी हुए हैं, 1-2 बाकी है, तो उसके बाद जो है वो फाइनल गजट नोटिफिकेशन जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा जाता है कि वो 2 हफ्तों के अंदर अंदर इलेक्शन होने के बाद जारी किया जाएगा। तो इसी तरह से 3 हफ्तों में जो है वो असम्बली का इजलास बुलाना भी ज़रूरी होता है, जिस दिन इलेक्शन होता है उससे लेकर 3 हफ्तों के दौरान। तो ये तकरीबन 2 से 3 हफ्तों का वक्त है तमाम उम्मीदवारों के पास सोच विचार करने के लिए, तमाम उम्मीदवारों के पास अपना पॉलिटिकल जो फ्यूचर है, सियासी मुस्तकबिल है, उसको तय करने के हवाले से। और दूसरी जानब जो नून लीग के लोग हार चुके हैं फैसलाबाद से, जो सियासी ओहदेदारान है जिन्हें टास्क सौंपे गए हैं, तो उनकी जानिब से ये कोशिशें भी की जा रही हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करवाएं, ताकि उनकी पंजाब में और मरकज़ में हुकूमत बन सके। और कल को हुकूमत बनेगी तो उनके जितने भी यहाँ पर काम है उनको बेशक हार हो गई है, लेकिन जो उनके टिकट होल्डर्स हैं MP MNA कंसीडर होंगे और उनके काम होंगे। अगर मुखालफिन की हुकूमत बन जाती है, अपोजिशन में बैठना पड़ता है, तो फिर ये सारे बेनिफिट से वो महरूम हो जाएंगे। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से भी ये ऐलान किया जा चुका है कि वो पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे, मरकज़ में भी बनाएंगे, KPK में भी बनाएंगे। तो ये उनकी जानिब से भी कोशिशें की जा रही हैं कि यहाँ पर ये लोग उनके साथ ही रहें। और उसके अलावा जो लोग आज़ाद हैसियत में भी मुंतखब हुए हैं, जो जैसे चन्योट से हुए हैं, तो उनकी जानिब से ऐलान आया PMLN में शमूलियत का। तो इस तरह से PTI की जानिब से ये भी कोशिशें हैं कि जो आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए हैं उनको भी अपने साथ मिलाया जाए। तो ये आने वाले अगले कई दिनों के लिए ये सियासी मंजरनामे पर ये चीज़ें हावी होने वाली हैं कि जहाँ पर तमाम लोगों के साथ मिलाने के लिए, और स्पेशली PTI के आज़ाद उम्मीदवार क्योंकि तादाद में ज़्यादा है, फैसलाबाद के हवाले से भी बात करें तो उनकी तादाद सबसे ज़्यादा बनती है कि यहाँ पर 9 कौमी असम्बली के है, जबकि 17 सूबाई असम्बली के है। पंजाब असम्बली में भी इसी तरह से जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनकी तादाद ज़्यादा बनती है, कौमी असम्बली में भी ज़्यादा बनती है। तो सभी सियासी निगाहें अब आज़ाद उम्मीदवारों पर, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता उम्मीदवार हूँ या इसके अलावा जो आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए हूँ, इन तमाम पर सियासी जमातों की नज़रें लग चुकी हैं। उनके साथ मीटिंग्स का टाइम तय किया जा रहा है। कुछ के हवाले से ये भी दावा किया जा रहा है कि उनकी मीटिंग्स भी हो रही हैं PMLN के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, PTI क़यादत के साथ, और वो अपने अपने जो मुतालबात हैं वो भी सामने रख रहे हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल हो चुकी है कि इस सूरत हाल में कि जब उन पर बज़ाहिर सिर्फ अपने वोटर्स का ही इखलाकी दबाव है कि उन्होंने उनको PTI के नाम पर जो है वो मुंतखब किया, इसके अलावा उन पर कोई भी दबाव नहीं है। क्योंकि अगर वो किसी भी सियासी पार्टी का हिस्सा बनते हैं तो आइन और कानून के मुताबिक उन पर कोई भी कदगन नहीं होगी। क्योंकि इससे पहले अजमल चीमा समेत जितने भी लोग मुनहरफ हुए थे तो उनको जो है वो डीसीट कर दिया गया था। तो ये PTI के जितने भी लोग कामयाब हुए हैं या आज़ाद हैसियत में लोग कामयाब हुए हैं, उन पर बज़ाहिर ये कोई कदगन नहीं है कि उनको किसी भी सूरत में डीसीट किया जा सकता है। तो वो किसी भी सियासी पार्टी में शामिल होने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। इसी सूरत हाल का फ़ायदा उठाने के लिए मुस्लिम लीग नून की क़यादत मुतहरक हो चुकी है कि कम अज़ कम पंजाब की सतह पर किसी भी पार्टी के तहादी होने की बजाय जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाया जाए, उन्हें मुख्तलिफ तरह की तरगीबात दी जाएँ, उनको वजारतें दी जाएँ या उनको एडवाइज़र बनाया जाए, ताहम उनकी जो है वो हमायत हासिल करके उनको पार्टी में शामिल करके अपनी पोजीशन मुस्तहकम की जाए, अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग बनाई जाए। ग्राउंड रियलिटीज़ में जो कुछ नज़र आ रहा है उसके मुताबिक इक़दाम करने की जो है वो पार्टी क़यादत ने हदायत भी जारी कर दी गई हैं। तो ये 2 हफ्ते जो जिसमें गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएंगे, जिसमें उम्मीदवारों के पास जो टाइम होगा किसी भी सियासी पार्टी को ज्वाइन करने का वो भी पूरा हो जाएगा। तो इन 2 हफ्तों में ये सब चीज़ें तय हो जाएंगी, कौन सी पार्टी जो है वो पंजाब में हुकूमत बना रही है, कौन सी मरकज़ में बना रही है। क्योंकि सिंध और KPK तो इस हवाले से क्लियर हो चुका है कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाएगी, KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाएगी। ताहम पंजाब और मरकज़ का जो अभी मामला है वो ज़ेरे इल्तवा है, उसमें चीज़ें तय नहीं हो रही। नून लीग बतौर पार्टी पंजाब में भी सबसे ज़्यादा सीटें ले चुकी है, मरकज़ में भी सबसे ज़्यादा सीटें ले चुकी है, दोनों जगहों पर हुकूमत बनाने के लिए फेवरेट भी है। ताहम इस सिलसिले में जो उन्हें रुकावटों का सामना है कि उनके पास जो नंबर गेम्स में MPs और MNAs कम है, तो इस सिलसिले में जो आज़ाद
उम्मीदवारान है वो उनकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। ताहम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में या मरकज़ में जो सीटें मौजूद है, तो वो भी अपनी जो बारगेनिंग की पोजीशन है उसको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि अगर वो इत्तेहादी बनते हैं तो उसका उन्हें ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो ये 2 हफ्तों में तमाम उम्मीदवार लीड करने वाली पार्टीज के नंबर बिल्कुल पूरे कर सकते हैं, और अब्दुल रहमान हमें इस हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम पर कितना पैसा खर्च किया, इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात मांग ली। इलेक्शन कमीशन की जानिब से उम्मीदवारों के लिए फॉर्म जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी और तमाम सूबाई असम्बलियों के लिए उम्मीदवार अखराजात का हिसाब देंगे। उम्मीदवार असम्बली में हल्फ उठाने के बाद अखराजात की मालूमात जमा कराएंगे। जारी शुदा फॉर्म में इंतखाबी मुहिम के अखराजात का बैंक रिकॉर्ड तलब किया गया। उम्मीदवारों को फॉर्म के साथ बैंक स्टेटमेंट भी जमा कराना होगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमैर रस्मत से। जी उमैर, क्या तफसीलात है आपके पास? जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात 2024 में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को हिदायत जारी की गई हैं कि वो इलेक्शन कैंपेन के दौरान होने वाले अपने तमाम अखराजात की तफसीलात फराहम करें। कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के लिए अखराजात की शरह मुकर्रर की जाती है कि वो इस शरह से ज़ायद अखराजात अपनी इंतखाबी मुहिम पर नहीं कर सकेंगे। तो इस हवाले से अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से उन तमाम उम्मीदवारों को हिदायत जारी की गई हैं जो कि इंतखाबात 2024 में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर कामयाब हुए हैं कि वो अपना हलफ उठाने के बाद अपने अखराजात की तफसीलात जो है वो इलेक्शन कमीशन को फ्राहम करे। इस हवाले से एक परफॉर्मा भी जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जिसमें वो तमाम तफसीलात तलब की गई हैं जो कि कैंपेन के हवाले से है। तमाम उम्मीदवार जो कि इन इंतखाबात में कामयाब हुए हैं वो इस परफॉर्मे को फिल करने के साथ साथ अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है उसका रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा करवाएंगे। ताहम वो उम्मीदवार जिनके अखराजात इलेक्शन कमीशन की मुकर्ररा हद से ज़ायद होंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात से कबल ही तमाम उम्मीदवारों को हिदायत जारी की गई थी कि वो इस हवाले से न सिर्फ शहरी मुहिम उमैर रस्मत में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया। फेस्को सेफ्टी डायरेक्टोरेट की कार्रवाइयां गुज़िश्ता 1 माह में 10 लाइन में मैन सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते पाए गए। फेस्को डायरेक्टोरेट ने मुतालिका सर्कल्स को लाइन मैनों के डेंजर अलाउंस में काटने की हिदायत कर दी है। आप मज़ीद जानते हैं अवैस से। अवैस आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। फेस्को के शोबा सेफ्टी डायरेक्टोरेट की जानिब से लाइन स्टाफ की चेकिंग की गई है फील्ड में। गुज़िश्ता 1 माह में 10 से ज़ायद जो लाइनमैन हैं वो सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए जो है वो पाए गए हैं। उन लाइनमैनों के डेंजर अलाउंस काटने के लिए शोबा सेफ्टी डायरेक्टोरेट की जानिब से तमाम तर सर्कल्स को हिदायत जारी कर दी गई हैं। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि लाइन स्टाफ जो है वो दौरान काम जो सेफ्टी से मुतल्लिक कवानीन हैं उन पर अमल दरामद यकीनी बनाए ताकि नाखुशगवार वाक़यात से बचा जा सके। सेफ्टी कवानीन की जो खिलाफ वर्जी है उसके खिलाफ रोज़ाना की बुनियाद पर चेकिंग की जाती है और जो लाइनमैन सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी करता हुआ पकड़ा जाता है उसके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाता है। सेफ्टी कल्चर को फ़रोग देने के लिए शोबा सेफ्टी डायरेक्टोरेट की जानिब से सेमिनार का इनकाद किया जाता है और जदीद जो आलात हैं वो ख़रीदे जा रहे हैं ताकि सार्फिन वैसे ही हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया।